Our leader, IT cell Pramukh and Saprabhari of Bengal, Shri Amit Malviya ji, for only speaking out the truth. 2023 में 2023 Udayanidhi Stalin, Mr. Stalin's son, Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, had attended a conference in Tamil Nadu where he had called upon not resistance or only trying to fight against Sanatan, but for the complete eradication and abolition of Sanatan. And this conference was organized where Udayanidhi Stalin made these comments, compared Hindu religion and Sanatan to dengue, to malaria, and it was in a sense a call, a chilling call of genocide against Hindus. 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने सीधे सीधे जाकर सनातन के समाप्ति की बात की थी, संपूर्ण हिंदू धर्म के मानने वालों के नष्ट की बात की थी, जेनोसाइड की बात की थी. And when this matter was raised by Amit Malviya ji, he has posted a tweet about this comment by Udayanidhi Stalin. Rather than act against Udayanidhi Stalin, the entire DMK government machinery, police and other agencies were left to treat vindictively Amit Malviya ji. उदयनिधि स्टालिन के इस जहरीले बयान पे कार्रवाई नहीं हुई. कार्रवाई उन पे हुई जिन्होंने हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते इस विषय को उठाया. और इसीलिए कल जो निर्णय आया है मद्रास हाईकोर्ट का, मैं आपको कोट करके भी बताऊंगा कुछ पैराग्राफ्स. एसेंशियली मद्रास हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को क्वॉश कर दिया है और क्वॉश करते समय कहा है कि डीएमके की सरकार, उदयनिधि स्टालिन, यह हिंदू विरोधी है, इनकी पूरी लेगेसी हिंदू विरोधी है, उनके स्टेटमेंट हेट स्पीच में आते हैं और अमित मालविया जी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है. So not only have they quashed the FIR yesterday, they have also come to conclusion, the High Court, that this statement is coming from a legacy of anti-Hindu and anti-constitutional DNA of DMK. मैं आपको कुछ पैराग्राफ्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं. पैरा 22 में हाई कोर्ट लिखता है, हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, मदुराई बेंच. There are records to show specific incidents of attack by DMK on Hinduism, like cutting tuft hair, Janyu, putting Janyu on pigs. Several complaints have been made, but none have been acted upon. It is evident that there is a clear attack on Hinduism by DMK. DMK as a party Hinduism पर हमला करती है, यह पैरा 22 में लिखा है. पैरा 23, by overall consideration speech of the minister, it indicates clearly that it is totally against 80% of Hindus. And this comes within the mischief of hate speech. The minister, Mr. Udayanidhi Stalin, hails from the legacy, above legacy, anti-Hindu legacy. 153, 153A, 505, 504, IPC should not be on Amit Malviya, but it should be on the minister's speech. पैरा 23 में कोर्ट कहता है कि जो स्पीच दी है उदयनिधि स्टालिन ने, यह 80% हिंदुओं को सर्वनाश करने की, जेनोसाइड करने का स्पीच है और यह हिंदू उसके खिलाफ है और यह हेट स्पीच में आता है. अमित मालविया जी का ट्वीट जो सच बताया वो नहीं आता. और उदयनिधि स्टालिन उस लेगेसी से आते हैं जहां पर हिंदू को दो गाली तो मिलेगी वोट बैंक की ताली. पैरा 24, court with pain records the prevailing situation that a person initiating the hate speech, matlab Udayanidhi Stalin, is set free, and person reacting to the hate speech, Amit Malviya, faces the wrath of law. No case has been filed against the minister for hate speech in the state. मतलब जिन्होंने हेट स्पीच दिया उनको तो छोड़ दिया गया और जिन्होंने बताया ये हेट स्पीच है उनके ऊपर पूरी सरकार टूट पड़ी. Para 26. Counter filed by Tamil Nadu police in the present case has political color, and this has been filed by the IO.
Officials should be apolitical, but they are taking sides with political party, which is reprimandable. Para 26 में लिखा गया है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु की पुलिस ने पक्षपात करते हुए, जिसने हेट स्पीच किया उसको छोड़ दिया, और जो हेट स्पीच बता रहा है कि हेट स्पीच है, उनके खिलाफ पॉलिटिकल कलर से कार्रवाई करते हैं, और यह कोर्ट कहता है reprimandable है. And para 27, final paragraph, court is of the considered opinion that continuation of the present case against petitioner Amit Malviya is an abuse of process of law. The court is inclined to quash the FIR quashed. मतलब कि अगर यह केस जारी रहता है तो अमित मालविया की प्रताड़ना स्टेट एजेंसीज के द्वारा की जाएगी. यह ऐसा होगा जो संविधान विरोधी होगा, जो लॉ विरोधी होगा, इसलिए केस को क्वॉश किया जाता है. तो इसका मतलब साफ है कि डीएमके एंटी हिंदू तो है ही, डीएमके एंटी संविधान भी है. ये जुबान पर संविधान पर फैलाते हैं नफरत ये भाईजान, और करते हैं हिंदू का अपमान. यही बन चुकी है डीएमके की पहचान. और ये कोई एकलौता ऐसा बयान है, मैं सुबह से देख रहा था, आई वाज वाचिंग सिंस मॉर्निंग. डीएमके लीडर्स आर सेइंग दैट इट इज अ मिसइंटरप्रिटेशन. वी आर मिसइंटरप्रेटिंग, media is misinterpreting, even Supreme Court is misinterpreting. DMK leaders should know that on 4th of March 2024, the Honorable Supreme Court has slammed Udayanidhi Stalin for the same comment. And I quote, Supreme Court says, you have abused your rights under Article 19(1)(a). You are not a layman, you are a minister. You should know the consequences of your speech. उधर भी hate speech कहा गया था उदयनिधि स्टालिन के बयान को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. इसी स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन नहीं करना आ रहा है, हाई कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा है, हिंदुओं को इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा है, केवल डीएमके को इंटरप्रिटेशन करना आ रहा है. और डीएमके का तो चरित्र बन चुका है. इट हैज बिकम द डीएनए ऑफ डीएमके. जस्ट फ्यू डेज अगो इसी मंच से हमारे तमिलनाडु के प्रभारी श्री पीयूष गोयल जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया था, और वो भी कोर्ट के आदेश के आधार पे था. उस समय पर भी मद्रास हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह जजमेंट दिया था कि जो सिंगल जज का जजमेंट था दीपम केस में कि हिंदुओं को कार्तिकाई दीपम लगाने का अधिकार है मदुराई में, वो फैसला सही है. और उस समय पर भी डीएमके ने क्या किया था? उस समय पर भी डीएमके ने इंपीचमेंट वाला फतवा जारी किया था उस जज के खिलाफ. At that time also the DMK, riled with its anti-Hindu, anti-Lord Murugan, anti-Samvidhan nature, had taken out a fatwa of impeachment against a single judge who had given the Hindus their constitutional right to light a deepam at the Deepathu. So this is not Sahyog. It is socha samjha vote bank ka udyog to give गाली टू हिंदूज, टू अब्यूज हिंदूज, टू थ्रेटन हिंदूज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु बाय डीएमके. उस समय पर भी हाईकोर्ट का कोर्ट आया था, ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग आई थी दैट यू आर क्रिएटिंग इमेजिनरी पब्लिक डिस्टर्बेंस इश्यूज टू प्रिवेंट द हिंदू कम्युनिटी फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. और उन्होंने उस समय पर भी डीएमके की सरकार को बहुत फटकार लगाई थी. और अगर आप पूरा चरित्र देखेंगे डीएमके का, तो इनके एक नेता ए राजा ऑन रिकॉर्ड, हिंदू रिलीजन इज अ मेनेस टू इंडिया एंड द वर्ल्ड. अब ये जो डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं कुछ लोग डीएमके के, कि इट्स बिन सेड अबाउट सनातन, सनातन मींस दिस, इट्स नॉट बिन सेड अबाउट द हिंदूज. तो ये ए राजा का बयान, आई एम कोटिंग, हिंदू रिलीजन इज मेनेस टू इंडिया एंड द वर्ल्ड. ए राजा, वी आर एनिमीज ऑफ प्रभु श्री राम. डीएमके लीडर टेल्स कार्डर्स डोंट वेयर हिंदू सिंबल्स. ऐसा बयान किसी और फेथ के बारे में तो नहीं दिया जाता डीएमके के द्वारा. और कौन सी अलायंस का हिस्सा है डीएमके, वो भी तो देखिए ना. वहां पे तो कंपटीशन है कि कौन हिंदुओं को ज्यादा थ्रेटन कर सकता है, कौन हिंदुओं को ज्यादा गाली दे सकता है, कौन हिंदुओं का ज्यादा अपमान कर सकता है. भाई डीएमके की सबसे बेस्ट फ्रेंड बीएफएफ कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी बोलती है प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं. कांग्रेस पार्टी बोलती है हिंदू टेरर होता है. कांग्रेस पार्टी बोलती है भगवा आतंक होता है. कांग्रेस पार्टी बोलती है सनातन डिजीज है, प्रियंक खड़गे जी ने बोला है. तो ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र,
जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को भी नाच गाना बोलते हैं, राम मंदिर को भी लटकाते अटकाते भटकाते हैं उसके निर्माण को। फिर उनकी दूसरी बीएफएफ समाजवादी पार्टी, जो कहती है मठाधीश इज इक्वल टू माफिया, जो कहती है रामचरितमानस को जला दो, जो कहती है कि वह हिंदू राम मंदिर जो है वो बेकार है और हिंदुओं पर गोलियां चलाती है और उसका अभिमान उसको महसूस होता है। ये तो इनके साथी है। इनकी तीसरी बीएफएफ टीएमसी, टीएमसी बोलती है प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, जय श्री राम बोलोगे तो जेल में जाओगे। अभी जागो मां किसी सिंगर ने गाया तो उसको पीट दिया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। तो डीएमके की संगति भी तो देखिए, ये पूरा अलायंस हिंदू विरोधी अलायंस। दिस एंटायर इंडी अलायंस, इट हैज टू फैसेट्स, एंटी हिंदू एंड एंटी संविधान। येट दे गो अराउंड सेइंग कि ये संविधान के रक्षक है, ये संविधान बचाओ वाले हैं। तो आज मेरा 3 सवाल है इस पूरे इकोसिस्टम से। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द कांग्रेस डीएमके इकोसिस्टम, व्हाट हैपेंड टू फ्री स्पीच, संविधान बचाओ, in case of Mr. Amit Malviya? You have filed a fake case only to harass, and you are using agencies of the state, whoever is your political rival, and then you are saying संविधान हम बचा रहे हैं। Question number 2, that Congress party which is doing press conferences and saying that we are biggest champions of Hinduism, we are Janyudhari Hindu, we wear Janyu on the coat and then we show we are Hindu. That Congress party, why is it so silent when DMK government has protected a person who said that Hindus should be exterminated? When will Mr. Rahul Gandhi, the champion of all these rights and speeches which are hate speech, when will Mr. Rahul Gandhi demand that now Udayanidhi Stalin should be sacked and a case should be filed against him in Tamil Nadu? Do you have any answer, Mr. Rahul Gandhi? Do you have any answer, Congress party? Do you have any answer? जो पूरा ये इकोसिस्टम है और जो इस्लामोफोबिया के नाम पे एक पूरी मंडली खड़ी हो जाती है, देखो ये इस्लामोफोबिया है, ये देखो मुस्लिम्स के साथ क्या किया जा रहा है। ठीक है, आपके बड़े लेजिटिमेट कंसर्न्स है, तो ये लेजिटिमेट कंसर्न नहीं है हिंदू फोबिक बयान देना, हिंदू आस्था पर चोट करना, 80% हिंदू का जेनोसाइड हो जाए, एक्सटर्मिनेट हो जाए, इरेडिकेट हो जाए, ये कौन सी स्पीच है? पूरा इकोसिस्टम खामोश है। एंटायर इकोसिस्टम हैज गॉन इनटू साइलेंट मोड, एयरप्लेन मोड, सिग्नल ही नहीं मिल रहा इनका। कुल मिलाकर आज जिस प्रकार से डीएमके सरकार पर यह लथाड़ लगाई है हाईकोर्ट ने, उदयनिधि स्टालिन को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं बचता। मिस्टर उदयनिधि स्टालिन शुड इमीडिएटली बी रिमूव्ड and a case should be filed against him for what has been called as hate speech against 80% of the population of this country, the Hindu community. And this is also partly being done, these statements, because DMK is running the most corrupt government in the history of India. अगर पूरे इतिहास को देखा जाएगा सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कोई है तो तमिलनाडु की डीएमके गवर्नमेंट है। अभी ज्यादा मैं उनके करप्शन के केसेस नहीं गिनाना चाहता, इट विल टेक 2-3 hours, देन यू ऑल विल गेट अपसेट विद मी। बट डीएमके का भी बस लास्ट येस्टरडे का बताता हूं। कैश फॉर जॉब स्कैम किया 880 करोड़ का, ब्राइब फॉर कॉन्ट्रैक्ट स्कैम किया 1000 करोड़ का, और वही मंत्री उनका एक नया स्कैम सामने आया, डॉसियर सबमिट हो चुका है ईडी के द्वारा पुलिस को, वहां पर ब्राइब्स फॉर ट्रांसफर स्कैम 365 करोड़ का, मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग लेने में भी स्कैम किया गया है। तो बिकॉज देयर इज अ फेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, because there is complete